السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحمد لله رب العالمين. Let us thank Allah subhanahu wa ta'ala to give us this opportunity to read and understand the book of Allah. Alhamdulillah. آج ہم پڑھ رہے ہیں پارا نمبر 1 آیت نمبر 72 onwards. We'll be studying from آیت نمبر 72. So آپ سب قرآن کھول لیجئے. سب سے پہلے تلاوت ہوگی. Over to سریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sheikh Maryam. أعوذ بالله من الشيطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sheikh Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آیت نمبر 72 onwards. As you all remember, آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک قتل ہوا تھا اور اس قتل کو کس نے کیا یہ پتہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک گائے ذبح کرو. سو واٹ واز دا ریئیکشن؟ کہ ان لوگوں نے بہت سارے کویشچنس کیے بنی اسرائیل نے کہ گائے ذبح کرنی ہے. اچھا کیسی ہو وہ گائے؟ اس کا رنگ کیسا ہو؟ اس کی ایج کتنی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ تو کیا آنسرز ملے تھے سریہ؟ جی باجی وہ میڈل ایج کی گائے ہو, اس کا کلر سیفران کلر ہو اور وہ نان ورکنگ ہو. اوکے ویری گڈ. اور صحیح سلامت ہو, اس میں کوئی عیب نہ ہو اور دیکھنے والے کو بالکل خوبصورت اٹریکٹیو لگے. تو فائنلی پھر
उन लोगों ने इंशाअल्लाह कहा اور اللہ کے حکم سے ان کو ایسی گائے مل گئی اور اسے ذبح کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں 72 میں آگے کیا ہوا۔ آیت نمبر 72، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہو شیئرنگ the screen، وہ اور از جب قتل تم قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو، یعنی جب مرڈر کیا، فَدَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، کیا الزام، ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، یو اسٹارٹیڈ accusing each other، فیہا اس میں، اس مرڈر کے میٹر میں۔ Who is sharing the screen؟ شمیم اور چاننٹی kindly do۔ واللہ اور اللہ، Sana is doing, I think. is it okay؟ واللہ اور اللہ مخرجم نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تھے تم چھپاتے۔ آیت 72 میں in English will do it، وَإِذْ قَتَلْتُمْ and when you murdered that person، نفسن one life۔ Baji, I'm incapable of doing it. Can Shamim or Chandanti do it? My app is not working. Okay, no problem. I'll do it. Whoever can do it, yeah, Shamim۔ فَدَّارَأْتُمْ then you started accusing each other fiha in that matter of murder. Wallahu and Allah mukhrijun, Allah is going to clear, ma kuntum whatever they were, taktumun they were hiding, whatever they were hiding, Allah is going to bring it out. This is ayat number 72 and 73۔ فَقُلْنَا پھر فرمایا ہم نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اِدْرِبُوهُ کیا کرو تم Wait, I am مارو، doing some. اِدْرِبُوهُ تم مارو اس کو، بِبَعْدِهَا ساتھ اس کے، کس کو مارو؟ وہ جو لاش چاچا کی پڑی تھی اس لاش پر اس ذبح کیے ہوئے گائے کا ایک حصہ اس پر مارو۔ کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ، الموتا مردے کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ 73۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ then Allah Ta'ala said, commanded، اِدْرِبُوهُ that you strike him, that dead body، بِبَعْدِهَا with a part of the cow, with the part of the cow that is being slaughtered۔ كَذَلِكَ likewise، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى یحیی زندہ کرے گا، اللہ will revive، bring back to life، الموتا the dead one، the dead body، وَيُرِيكُمْ and Allah will show you، آیاتِہِ his signs، Allah will show you his signs، لَعَلَّكُمْ تَأْكِلُونَ so that perhaps you may use your brains، use your intellect، عقل ورڈ ہے اس میں، تو تاکہ ہو سکتا ہے تم عقل سے کام لو، use your brains۔ So now what happened؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 72 اور 73 میں کہ جو تم لوگوں نے مرڈر کیا تھا، اب جو ہے یہ گائے ذبح کرنے کا جو حکم دیا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ مرڈر مسٹری سالو کریں گے۔ اللہ will solve the murder mystery for you، whatever you are hiding، wherever the murderer is hiding
Allah will bring forth the secret of the murderer. यानी अल्लाह ताला इसे खोलकर बता देंगे. फिर क्या फरमाया अल्लाह ताला ने 73 में, कैसे होगा ये? तुम क्या करो कि ये जो चाचा की लाश पड़ी है ना यहाँ पर, तो अभी जो गाय ज़बा किए है, तो गाय के बॉडी का एक हिस्सा उसे चाचा के लाश पे जस्ट टच करो, मारो. ऐसा करते ही चाचा की लाश दोबारा जिंदा हो गई. ये जो आया कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह जिंदा करेगा मुर्दे को. तो उस दिन उन लोगों के सामने अल्लाह के हुक्म से ये हुआ कि वो चाचा दोबारा जिंदा हो गया और उसने अपने भतीजे की तरफ पॉइंट किया कि ये मेरा मर्डरर है, इसी ने मेरा कत्ल किया. और उसने इशारा कर दिया, बता दिया, सबने देख लिया, और फिर दोबारा उसको मौत आ गई और वो फिर से मर गया. बट अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा दिखा दिया कि वो मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व कर दी. गाय को ज़बा करने का हुक्म दे दिया ताकि गाय की अजमत भी दिल से निकल जाए. प्लस अल्लाह ताला ने उनको ये इतना बड़ा मौजज़ा दिखाया कि कयामत के दिन अल्लाह हैज द पावर्स कि वो इसी तरह दोबारा जिंदा करेगा मुर्दों को, हर मुर्दे को. Each one of us on the day of the Qiyamah, Allah will resurrect us, and it is not at all difficult for Allah. अल्लाह ताला फरमाते वो दिखाता है तुमको अपनी निशानियां. These are the signs of Allah. ये निशानियां देखकर हो सकता है कि तुम अब अक्ल से काम लेना शुरू करो. Start using your brains. Alhamdulillah. What is the important moral that we learn here, Chand aunty? कि we should use our brains and हमको ये दुनिया की गफलत में नहीं रहना है, क्योंकि एक दिन हमको भी अल्लाह के आगे फिर हम उठेंगे, जिंदा होंगे मौत के बाद, और उसके आगे वो हमारा नाम लेके हमको हर एक को खड़ा करेगा जब हमको हमारा जवाब हिसाब देना पड़ेगा. Exactly. और क्या हमने कभी ऐसा मौजज़ा देखा है कि एक लाश, एक कोई इंसान मर गया और फिर वो दोबारा जिंदा हुआ, उसने कुछ बात की? Has anybody of you witnessed this? किसी ने नहीं देखा, No. right? हाँ, लेकिन हम लोग हर रोज दूसरी निशानियां देखते हैं अल्लाह की. Have you ever seen कि कोई ट्री, कोई प्लांट, कोई दरख्त वो बिल्कुल सूख जाता है पतझड़ में, और सारे पत्ते उसके इन द फॉल सीजन सारे पत्ते गिर जाते हैं और वो ऐसा लगता है एज इफ इट इज अ डेड प्लांट. और फिर बारिश आती है और फिर हल्की हल्की छोटी छोटी ग्रीन लीव्स उस पर आना शुरू होती है. हैव यू सीन दिस इन एवरी रेनी सीजन? Yes. यस. तो क्या अल्लाह ताला हमें निशानियां नहीं बताते? हमें भी बताते हैं कि कैसे अल्लाह ताला हमें कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेंगे. Isn't it? So अल्हम्दुलिल्लाह we see barren land, सूखी हुई जमीन, बिल्कुल सूखी हुई, और जब बारिश के चंद कतरे आते हैं और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो जमीन फिर से हरी भरी हो गई, फ्रेश ग्रीन. हैव यू सीन शमीम? जी बाजी. So are these signs not enough for us? Baji, we also have a temporary death every night when we go to sleep and we wake up in the morning alive. This is also a big mu'jiza. Alhamdulillah. And do we realize it? We have to realize every morning when we wake up, Baji. We do not, but. हाँ, हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर. या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा किया. अल्हम्दुलिल्लाह. बट हम पढ़ तो लेते हैं बट रियलाइज नहीं करते. यस शमीम, यू आर राइट. हमें करना
चाहिए, क्योंकि हर रोज ये मौजज़ा हमारे साथ भी होता है। और ये सबसे बड़ी हकीकत है जिसको मेजॉरिटी लोग, मेजॉरिटी कम्युनिटीज झुटलाते हैं। अल्लाह अकबर। अब इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद ये बनी इसराइल का क्या हाल होना चाहिए था? इनका ईमान का लेवल बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। है ना? अब देखते हैं 74 में बढ़ता है या घटता है। ओके, आयत नंबर 74। सुम्मा फिर, सुम्मा फिर, कसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम दिल तुम्हारे। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस वाक़ये के बाद सख्त हो गए तुम्हारे दिल। मिन बादी ज़ालिक, इस वाक़ये के बाद, बाद समझते हैं, बाद, ज़ालिक इसके, फिर, हिया वो क्या, वो दिल, जो तुम्हारे दिल सख्त हो गए ना, वो दिल कल हिजारती, क यानी जैसे, हिजारती जैसे कि पत्थर हो, जैसे कि पत्थर, रॉक्स, औ या अशद्दु, या ज्यादा कड़क, ज्यादा हार्ड, कसवतन सख्ती में, या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। व इन्ना, और बेशक, मिनल हिजारती, पत्थरों में से, लमा, जो, यतफज्जरु, वो फूट निकलती है, फट पड़ती है, फूट निकलती है, मिनहु, उस पत्थर से, अनहारू नहरे। अल्लाह ताला अभी हमें 3 टाइप के पत्थर बताने वाले हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोन्स, रॉक्स। फर्स्ट वो है कि फूट पड़ते हैं उसमें से नहरें। व इन्ना, और बेशक, मिन्हा, उससे, लमा, बेशक जो, यशक्ककू, वो शक हो जाता है, क्रैक हो जाता है, फयखरुजु, फिर निकलता है उससे, उस पत्थर से, अलमाउ, पानी। ये सेकेंड टाइप का पत्थर कि वो क्रैक हो जाता है और उससे निकलता है पानी। व इन्ना मिन्हा, और बेशक उससे, थर्ड टाइप, लमा यहबितु, बेशक जो, वो गिरता है, वो गिर पड़ता है, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, खशियत, अल्लाह के खुशू और खौफ के साथ वो गिर पड़ता है। ये थर्ड टाइप पत्थर का। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, गाफिल, अनअवेयर, अम्मा ताअमलून, उससे जो तुम अमल करते हो। ताअमलून में आइन मीम लाम, अमल वर्ड नजर आया शमीम? आइन मीम लाम, जी अमल। बाजी, एन और मीम लाम। पिछली, हाँ, पिछली आयत में आइन काफ और लाम था, अकल, राइट? पिछली आयत में अकल आया था ना कि ताकि तुम अकल से काम लो, तो जी उसमें बाजी, क्या वर्ड था? आइन काफ लाम, अकल। बोलिए, आइन काफ लाम, अकल। एन काफ लाम, अकल। हाँ, और यहाँ पर क्या है? आइन मीम लाम, एन मीम लाम, अमल। अमल। तो देखिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर जरा सा हमारा मीम लाम इधर उधर हो गया तो वर्ड चेंज हो जाएगा, वर्ड चेंज हो जाएगा तो मीनिंग भी चेंज हो सकता है, राइट? नाउ इन दिस आयत हमको ऐसा लगता है पत्थरों के बारे में आयत हो रही है, लेकिन ये आयत पत्थरों के बारे में नहीं, दिलों के बारे में है। वेरी ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट आयत अबाउट द हार्ट्स। इसको इंग्लिश में करना बाकी है शायद। हाँ, आयत नंबर 74 in English. Thumma qasat qulubukum, then hardened your hearts. Min ba'di zalika, after this incident.
فَهِيَ then كَالْحِجَارَةِ like the stones or rocks. Their hearts became like the stones or rocks. أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً or even stronger in hardness, harder than the rocks. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ and indeed from amongst the stones, lama certainly yatafajjaru minhu from those rocks it gushes forth anharu the springs of water. Wa inna and indeed minha from those rocks lama yashakkaku indeed certainly which splits cracks. yashakkaku में shakka word है, splits cracks. fayakhruju so gushes out minhul ma'u from it the water. Wa inna and indeed minha from it from them lama yahbitu certainly fall down min khashyatillah due to the fear of Allah. Those rocks fall down due to the fear of Allah. Wamallahu bighafilin amma ta'malun and Allah is not unaware of whatever you do. Allah is not unaware of your deeds. Allahu Akbar. Now this is a beautiful ayat. I'm going to share some pictures so that you can understand. How many rocks can you see here, Chananti? There are 3 types of rocks. Okay? There are 3 types of hearts and 3 types of rocks. अभी क्या है इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बनी इसराइल से कि ये वाक्य के बाद तुम्हारे दिल तो पत्थरों जैसे सख्त हो गए. हालांकि होना ये चाहिए था कि तुम्हारे दिल नरम पड़ जाते, तुम्हारा ईमान बढ़ जाता, पर तुम्हारे दिल तो पत्थरों जैसे सख्त हो गए या तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त. अल्लाहु अकबर. अभी दिल कैसी चीज है? आपको पता है हमारा दिल किस चीज से बना है? शमीम, our heart is it some kind of a bone or a stone or a muscle? What is it? It's a muscle. It's a muscle. It's a muscle. It's a muscle. It's only a muscular organ. गोश्त का बना है लोथड़ा, उसके अंदर हड्डी नहीं है, पता है आपको, और पूरा टाइम वो धड़कते रहता है. तो अगर हमारे हार्ट में हमको पता है कि अगर एक क्लॉट हो जाए किसी आर्टरी में तो क्या हो जाता है? What happens if there is a clot? Then there is a block and Attack. There's a heart you attack. can, yes, you can suffer with a heart attack, है ना? तो एक क्लॉट भी नहीं चलता है. अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे कि इनके दिल तो पूरे के पूरे पत्थर बन गए, इतने सख्त या फिर पत्थर से भी ज्यादा सख्त. अब अल्लाह ताला हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देयर आर पीपल and Allah Ta'ala compares them with stones. That there are 3 types of stones and 3 types of people. Excuse me. Excuse me. So we are going to study about 3 types of hearts and 3 types of rocks today. जो comparison अल्लाह ताला ने किया है कि 3 तरह के इंसान और 3 तरह के rocks है. एक तो वो है excuse me बहुत beautifully explain किया है. We will see one by one. हाँ, can you see this one? First one.
तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि एक तरह का दिल वो है जैसे कि दिल था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का। और आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐसे भी पत्थर है कि वो फूट निकलती है उसमें से नहरें। कैन यू सी द फर्स्ट वन हियर चांद आंटी? यस जी। यस, तो ये ऐसे होता है इफ यू हैव एवर विजिटेड एनी माउंटेन प्लेसेस जहाँ पे वाटरफॉल्स होते हैं, तो आप देखोगे कि है ना पीछे पानी होता है और वो रॉक्स जो आगे होते हैं ना, तो फिर वो पानी का प्रेशर ऐसा होता है कि वो पत्थरों को फोड़ कर पत्थर फट जाते हैं उस पानी के प्रेशर की वजह से, और फिर वहां से ना पानी की नहरें बहती है। यू कैन सी द स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स। देखा है कभी किसी ने? यस सबने देखा होगा, राइट? तो ये इतने बड़े बड़े पत्थरों को फाड़ कर चीर कर ये पानी का प्रेशर पत्थरों को फाड़ देता है और उसमें से नहरें बहने लगती है। दैट मीन्स वो पत्थर काम की चीज हो गई ना उस वक्त, भले वो पत्थर है, इट इज ऑफ ऑफ नो यूटिलिटी। यूज, इट इज ऑफ नो यूज, बट ये पत्थर भी काम आ गया कि वो जब टूटा तो उसने पानी की नहरें बहा दी। वाटर इज यूजफुल फॉर एवरीबडी, इजंट इट? उसी तरह यहाँ पर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, water is described as ईमान। water is described as ईमान, कि जब ईमान का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो पत्थर को तोड़कर उसमें से पानी बहने लगता है। यूजफुल टू ह्यूमैनिटी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, उन्होंने एट वंस within a second without any hesitation इस्लाम कबूल कर लिया। और खुद ही नहीं किया, एक दिन में उन्होंने जाकर 7 लोगों को मुसलमान बना दिया। And his life was a complete life full of charity. उनकी जिंदगी की का हर लम्हा, उनके माल का हर दिरहम, हर पैसा, उनकी लाइफ का एवरी सेकेंड, उनकी बॉडी की एवरी एनर्जी, उनका ईमान, उनका अकल, उनकी जिंदगी, उनका औलाद, सॉरी उनकी औलाद, उनका घर, सब कुछ। उनकी बेटी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सक्यूज। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बन गए लोगों के लिए वेल विशिंग की स्प्रिंग्स, रिवर्स। यू गेट इट? सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो पत्थर तो कड़क होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ तरह के पत्थर ऐसे भी होते हैं कि उससे इतना फायदा पहुंचता है इंसानियत को आज दिन तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब एक नदी, एक स्प्रिंग बहने लगती है तो वो पानी से कौन कौन फायदा उठाता है? इंसान, जानवर, बर्ड्स, स्मॉल लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स, जमीन प्लांट्स, जमीन, खेती बाड़ी, है ना, गार्डन्स। So, and it doesn't stop, it keeps on flowing. So this is called sadqae jariya, continuous charity, alhamdulillah। तो फिर ऐसे टाइप के भी हार्ट्स है और ऐसे टाइप के भी स्टोन्स है। हम तीनों टाइप पढ़ेंगे, तीनों के एग्जाम्पल भी देखेंगे, और फिर है ना हमको अभी चूज करना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में जाऊं। दैट इज व्हाट वी विल लर्न टुडे इंशाल्लाह। नाउ वी विल सी अबाउट द सेकंड टाइप। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, there is the second type here. सेकंड पत्थर जो है, इसकी मिसाल है
उमर रजी अल्लाहु अन्हु। और इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, व इन्ना मिन्हा, और बेशक कुछ पत्थर, लमा यशक्ककु, वो क्रैक हो जाते हैं, दे स्प्लिट अप, फयखरुजु मिनहुल माअ, फिर निकलता है उससे पानी। अभी सेकंड एग्जाम्पल है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। आप देखोगे वो जो बीच में आपको नजर आ रहा है कुरान और हार्ट, हार्ट एंड ब्लड, ब्लड का ड्रॉप है वहां पे, और हाथों पे खून लगा हुआ है। कैन यू सी चांद आंटी? यस। तो आपको याद है कि उमर रजी अल्लाहु अन्हु इनिशियली, एज आई टोल्ड, कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को कितना टाइम लगा था ईमान लाने के लिए? Instantly. इंस्टेंटली, वेरी गुड। अभी उमर रजी अल्लाहु अन्हु को पता है कितना टाइम लगा? 6 years. How many years? 6 years. 6 years. Now this is very important. तो 6 years तक, for the first 5 years of नबूवत, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ थे? He was out of scene. He was neutral. He was neither a enemy of Islam nor friend of Islam. वो अपनी दुनिया में मस्त थे 5 सालों तक, है ना? So he was busy in his own life, his business, his family, and he was unaware about Islam. 5 सालों तक उनको इस्लाम की खबर नहीं थी मक्का में रहते हुए। फिर जब 6ठा साल लगा, तब जो है इस्लाम फैलने लगा, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत गुस्सा आने लगा, और वो दुश्मन बन गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और वो सोचने लगे कि एक दिन तलवार लेकर निकले कि आज मैं खात्मा कर दूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नौजुबिल्लाह। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में किसी ने उनसे कहा कि पहले अपने घर पे तो देखो, तुम्हारी बहन और बहनोई भी ईमान ला चुके हैं। तो उनको और गुस्सा आया, उनका ईगो और हर्ट हुआ। फिर वो सीधा अपने घर की तरफ रवाना हुए, अपने बहन के घर। वहां जाकर उन लोगों की खबर ली कि क्या तुम लोग इस्लाम कबूल कर चुके हो? जब बहन और बहनोई समझाने लगे, तो बहन को इतने जोर से चाटा मारा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। He was such a strong man and very violent as well as angry young man. And तो ऐसा जोर से चाटा मारा कि बहन का जो है ना खून निकल आया गाल और कान के पास से। तो यही खून नजर आ रहा है यहाँ पर, दिख रहा है आपको? अब क्या हुआ, फिर उनको बहन का खून देखकर जरा से वो ठंडे हो गए। बुरा लगा कि मैंने बहन को इतना मारा कि खून निकल रहा है, तो थोड़े ठंडे हो गए। तो फिर बहन और बहनोई ने फायदा उठाया इस बात का, और बहन ने समझाया भाई को। तो भाई ने कहा, अच्छा तुम ये क्या पढ़ते रहते हो, क्या कुरान नाजिल हुआ है, जरा मुझे पढ़ के सुनाओ। तो फिर बहनोई ने कुरान पढ़कर सुनाया। आप देख रहे हो कि वो कुरान सुनकर, बहन का खून देखकर क्या हुआ, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल क्रैक हुआ, स्प्लिट हुआ, उनका दिल पिघल गया। और फिर वो उस दिन सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और वहां जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। तो कुछ ऐसे दिल होते हैं कि वो बहुत सख्त होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, बट सम इंसिडेंट इन देयर लाइफ, किसी की जिंदगी में कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई तकलीफ आती है, किसी की मौत, किसी की बीमारी, कोई परेशानी, और वो बन जाती है उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट। और उस तकलीफ, उस इंसिडेंट की वजह से उस इंसान का दिल नरम पड़ता है और उसके अंदर से ईमान फूट पड़ता है, उसके अंदर ईमान जाग जाता है। और ऐसे भी पत्थर होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने किसका देखा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। And for 5 years he was lost in his own life. So then there was this excuse me, ये बहुत ही क्या कहते हैं इसको, there was a good
tug of war between his heart and mind, and finally his heart melted and he got into Islam. इससे पहले एक और वाकया इनके साथ ये हुआ था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ. वन डे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसी तरह काबे के पास गए, और उस दिन भी उनका मकसद था कि मैं जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज खत्म कर दूं. तो काबे के पास छुप कर देख रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें तिलावत कर रहे थे. See, at that time there was no Quran in hand. They would recite it, है ना, by heart होता था. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं. तो ये कुरान की आयतें सुनकर कौन सुन रहा था चुप चुप के, चांद आंटी? हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु. यस. तो कुरान सुनकर क्या हुआ पता है उन पर इम्पैक्ट? वो सोचने लगे कि ये तो इतनी अच्छी शायरी है, सच अ नाइस पोएट्री. अभी वो दिल में सोच रहे थे, तो इतने में अल्लाह ताला की जो आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, देखिए आप स्क्रीन पर अगर थोड़ा जूम करेंगे तो, एंड इट इज नॉट द वर्ड ऑफ अ पोएट, लिटिल डू यू बिलीव, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, अगर तुम थोड़ा भी ईमान लाओ तो. ये नेक्स्ट आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या सोच रहे, देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे उनका एक्सप्रेशन है, हाउ डिड ही नो, ही मस्ट बी अ माइंड रीडर. वो सोच रहे मैं दिल में बोल रहा हूँ कि कितनी अच्छी पोएट्री है, शायरी है, और अब ये खुद जवाब दे रहे कि ये कोई शायरी नहीं है, अगर तुम ईमान लाओ तो. तो वो सोच रहे क्या ये माइंड रीडर है, इनको कैसे पता चला मैं दिल में क्या सोच रहा हूँ. तो फिर अल्लाह ताला की नेक्स्ट आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी वो ये थी, नॉर द वर्ड ऑफ अ सूदसेयर, लिटिल डू यू रिमेम्बर, कि ये किसी काहिन की बात भी नहीं है, काहिन का कलाम भी नहीं है. लिटिल डू यू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड. तो वो सोचते हैं कि इनको कैसे पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, हाउ डज ही नो, व्हाट इज इट. तो फिर अल्लाह ताला ने जो आखिरी आयत नाजिल फरमाई उस वक्त, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कलाम रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ है. ये सुनकर उस दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भाग गए थे वहां से, काबे के पास से, कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस. सो देयर वाज अ बिग स्ट्रगल बिटवीन हिज हार्ट एंड माइंड. फिर उसके बाद वो बहन वाला वाकया हुआ. उस दिन उनका दिल बिल्कुल पिघल कर मोम हो गया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया. तो ऐसे भी पत्थर होते हैं कि जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा वाकया हो जाता है, किसी पर मुसीबत आ जाती है, किसी का सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसे ट्रॉमेटिक, कभी अर्थक्वेक आ गया, पूरी घर गिर गया, किसी की पूरी फैमिली खत्म हो गई, और फिर ऐसे इंसिडेंट्स इंसान को हिला कर रख देते हैं, और फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू होता है, तब उसका ईमान जागता है. गॉट इट? दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ स्टोन. अभी हम देखेंगे थर्ड टाइप. समझ आ रहा है यहाँ तक? मजा आ रही है? बहुत अच्छे से. Alhamdulillah. Now we will see the third. Can you see the screen? The third type of a heart. Okay. First हमने देखा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जैसे वो गश हो रहा है स्प्रिंग. सेकंड ये है कि क्रैक हुआ पत्थर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का 6 साल के बाद, है ना. और फिर थर्ड टाइप ऑफ हार्ट्स अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द थर्ड टाइप. हाँ, थर्ड टाइप के लोग वो है कि वो अल्लाह का हुक्म सुनते हैं, उनके दिल सख्त होते हैं, लेकिन जब अल्लाह की आयत उनके सामने सुनाई जाए तो फिर वो अल्लाह के खौफ से
सजदे में गिर जाते हैं. This is third type is about all the Muslims कि इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन दिल में ईमान नहीं है. इस्लाम विदाउट ईमान, जैसे हो सकता है हम सब भी है कि हम वी आर बॉर्न मुस्लिम, हम इस्लाम में ही पैदा हुए हैं, इसीलिए हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं और सजदे भी करते हैं, तवाफ भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी कर लेते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हम में दिल होते हैं कि अभी तक दिल के अंदर ईमान की मिठास नहीं आई, अभी तक अल्लाह के साथ वो कनेक्शन नहीं जुड़ा है, हालांकि हम सजदे कर रहे होते हैं. फिर इनके साथ भी ये होता है कि किसी दिन अल्लाह का ऐसा खौफ और खशियत दिल में आ जाती है. कभी ऐसा होता है ना कि अभी हम तो कुरान समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देन यू ऑल्सो वांट टू शेयर द लिंक विथ सम ऑफ योर cousin, with your friend, with your family. वाइफ सुनती है और समझती है तो वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड भी सुने, वो भी कुरान को समझे, उनका भी ईमान का लेवल बढ़े. क्या हम लोग ये चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? जरा हाथ ऊपर करें. क्या हमारे दिलों में ऐसा ख्याल आता है कि मेरा फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरे कजिन को भी, उसको भी मिल जाए, इसको भी मिल जाए? बट क्या हम कन्वे कर पाते हैं, हर एक को कन्विंस कर पाते हैं? चांद आंटी, इज इट पॉसिबल? लिटिल डिफिकल्ट है ना. सो व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज हिदायत देने वाला अल्लाह है ना. तो हमें नहीं पता कि कब कौन सी वो घड़ी हो, कौन सा वो इंसिडेंट हो, कौन सी वो किसकी बात, कौन सी चीज देखकर किसका ईमान बढ़ जाए, उसका ईमान का लेवल बढ़ जाए. ये हिदायत, ये तौफीक अल्लाह ही के हाथ में है. बट हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, हम दुआ करते रहे एक दूसरे के लिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा इकराम के लिए भी दुआ करते थे कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को बढ़ाए. और अपने लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद के लिए क्या दुआ करते थे? फरमाते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को इस्लाम पर जमाए रख, बिल्कुल फर्म रख या अल्लाह. तो वी ऑल्सो हैव टू आस्क फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह से हमें दुआ करनी है इंशाल्लाह. फिर आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो. ऑल योर डीड्स अल्लाह नोज. अल्लाह अकबर. इतनी ब्यूटीफुल ये आयत. अब इसमें हम देखेंगे कुछ चीजें कि दिल सख्त कब होते हैं, क्यों होते हैं, और दिलों का इलाज क्या है. अगर दिल सख्त हो गए हमारे तो क्या उसका कोई इलाज है? एनी सॉल्यूशन? देखिए, कैन यू सी दिस हदीस? चांद आंटी, इफ यू कैन रीड इट प्लीज. जी हाँ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के जिक्र के अलावा ज्यादा बात न किया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला के जिक्र के अलावा ज्यादा बात करना दिल की सख्ती का सबब है, और अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा दूर वो शख्स है जो सख्त दिल हो. तिर्मिजी. यस, अल्लाह अकबर. देखिए इसमें क्या आ गया, ये सब हम औरतों के काम होते हैं ना. अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र के अलावा ज्यादा बात ना किया करो, इसलिए कि अल्लाह का जिक्र के अलावा अगर हम कोई दूसरी बातें, फालतू बातें, गॉसिप करने में लग जाते हैं तो ये हमारे दिलों की सख्ती का सबब बनते. योर हार्ट्स गेट हार्डन्ड. और अल्लाह से सबसे ज्यादा दूर वो शख्स है जिसका दिल सख्त हो.
یا اللہ. تو اب کیا کریں گے ہم؟ اپنی ساری فالتو کی گوسپ، فالتو کے کویشچنز، غیبت، یہ سب کیا کرنا ہے؟ بند کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بند. Only then we can keep our hearts softened, انشاءاللہ. اور حدیث دیکھتے ہیں، چھوٹی سی ہے، یہ پڑھیے. جی. دل کا سخت ہونا بد نصیبی کی نشانی ہے. اللہ اکبر. دل کا سخت ہونا بد نصیبی کی نشانی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. ہاں اسے پڑھیے. افسوس رات دن گناہوں میں گزرنے کی وجہ سے ہمارا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی. رات دن ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو گناہوں میں رات اور دن ہم گناہوں میں گزارتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو پھر کیا ہے اس کا سلیوشن؟ کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں. اب یہ انگلش میں آپ پڑھ سکتے ہو. 4 things. 4 چیز. اچھا. 4 things are the signs of misfortune. Number 1, one can't cry. 2, being hard by heart. 3, never ending hopes. And 4th, greed for the world. اللہ اکبر. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے، مس فارچون. نمبر 1، آنکھوں کا خشک ہونا. آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتے، اتنے ہمارے دل سخت ہو گئے. نمبر 1 آنکھوں میں آنسو نہ آنا. نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا، کسی پر رحم بھی نہیں آتا، کسی کے لیے برا بھی نہیں لگتا. نمبر 3 امیدوں کا لمبا ہونا، یعنی اتنے بڑے بڑے ہوپس، نیور اینڈنگ ہوپس، امیدیں. اور 4 دنیا کی ہرس، لالچ، صرف دنیا دنیا دنیا. اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے؟ بد نصیبی کی 4 چیزیں. یہ والی بھی پڑھ لیجیے چاند آنٹی. جی. ایک شخص نے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرا دل سخت ہے، اسے نرم کیسے کروں؟ ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. یس. اللہ اکبر. تو پہلی حدیث میں ہم نے کیا سیکھے تھے؟ کہ اللہ کا ذکر، اگر اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے. دیٹ مینس دل نرم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. نمبر 2 یہاں پر کیا کیا ملا ہم کو؟ کہ اگر دل سخت ہو گیا ہے تو نمبر 2 بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اس کی بھوک کا احساس وہ کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں احساس جاگے گا، بھوک، پیاس، بیماری، تکلیف. اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. ہاسپٹلس کو وزٹ کریں گے، قبرستان وزٹ کریں گے، کسی کے گھر میت ہو گئی ہے وہاں وزٹ کریں گے. تو یہ ساری عبرت کی چیزیں ہیں. ہاسپٹل اسپیشلی جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہیں نا، تب سچ میں رونا آتا ہے نا. اینڈ اس طریقے سے ہمارا دل نرم ہو سکتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وی آر سو ہیپی اینڈ وی ہیو ایوری تھنگ الحمدللہ. تو ہم لوگ صرف بڑے لوگوں کی پارٹیز میں جہاں پہ خوب کھانا ہے، اتنا کھانا ویسٹ ہو رہا ہے، دین کمپٹیشنز، اس نے ایسی جولری پہنی ہے، اس کے پاس یہ برانڈ ہے، وہ برانڈ ہے، باتیں بھی کمپٹیشن کی ہو رہی ہے، بڑی بڑی باتیں، دکھاوا، لالچ، گریڈ. تو پھر دل سخت ہوں گے یا نرم ہوں گے؟ دل تو اور سخت ہوتے جائیں گے. تو نرم دل کرنا ہے تو غریبوں کی بستی میں جاؤ، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، تن پر کپڑا نہیں ہے، ہاسپٹلس میں بیمار لوگ پڑے ہیں، بے بس، اپاہج. ان کو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اگر جائیں گے تو they don't have any basic amenities. اللہ اکبر. یتیم خانوں میں یا راستے پہ
फकीर के बच्चों को देखो तो देन यू नो ये यतीम बच्चे हैं, उनके सर पे हाथ फेरो. दिस इज हाउ वी कैन सॉफ्टन आवर हार्ट्स. अल्लाहू अकबर. और किस तरह हम दिलों को सॉफ्ट कर सकते हैं? अल्लाह की याद, ऐसे लोगों का साथ, अ गुड कंपनी, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, हमको अल्लाह की याद दिलाते हैं, उनकी कंपनी में रहना. और जो लोग चैरिटी करते हैं, नेक काम करते हैं, उनकी संगत में रहने से हमको और आइडियाज आएंगे कि हाउ शुड वी आल्सो परफॉर्म मोर सदकात. कुरान पर गौर व फिक्र. कुरान पर गौर व फिक्र, जैसे हम एक एक आयत को पढ़ते समझकर, एक एक वर्ड खोल खोल कर, तो कुरान का गौर व फिक्र हमारे दिलों को क्या कर देगा? बिल्कुल नर्म कर देगा इंशाल्लाह. और मौत को कसरत से याद करना. अभी दिल सख्त होने की और कुछ टेस्ट है. क्या हमें चेक करना है आज कि हमारा दिल सख्त है या नर्म? अगर हम चेक करना चाहते हैं तो 3 टेस्ट है. नंबर 1 टेस्ट है कि अल्लाह के मजलिस में, अल्लाह के जिक्र की मजलिस में दिल नहीं लगता. हम सब तो यहाँ खुशी से आए ना, वॉलंटरीली, तो माशाल्लाह हमारे दिल सख्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जिनका दिल अल्लाह की मजलिस में नहीं लगता, तो फिर ये क्या है? फर्स्ट साइन है दिल के सख्त होने का. नंबर 2 क्या है? कुरान पढ़ने को दिल नहीं चाहता. नंबर 2 क्या है? कुरान पढ़ने को दिल नहीं चाहता. यू डोंट फील लाइक रिसाइटिंग कुरान. अस्तगफिरुल्लाह. एंड नंबर 3 टेस्ट इज तन्हाई में सुकून नहीं मिलता. You always want to party. You always want to be surrounded by people. तन्हाई में सुकून नहीं मिलता. तो ये तीनों टेस्ट है दिल सख्त होने के. You always want to be surrounded by people. अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाह हम सबको दिलों के सख्त होने से बचा ले. तो हमको अपने आप दिलों को हमेशा चेक करते रहना है. यहाँ पर पत्थरों की बात आई तो पत्थरों के बारे में कुछ बता दूं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 वाकयात है. एक बार ये क्वेश्चन आता है ना कि क्या पत्थरों में जान होती है, क्या पत्थरों के भी एहसास होते हैं? तो सुनिए 3 वाकये है. नंबर 1, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर थे, अपॉन अ माउंटेन. तो उस पहाड़ पर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज आई कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझ पर से उतर जाइए, मुझे डर है कि आपको मेरे ऊपर कहीं आपको कत्ल ना कर दिया जाए. यानी उस पहाड़ ने, उस पत्थर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौकन्ना कर दिया, और कहीं मेरे ऊपर आप पर हमला हो तो अल्लाह ताला मुझे भी अजाब ना कर दे इस वजह से, तो आप मुझ पर से उतर जाइए. उसने अलर्ट कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. सुभान अल्लाह. यानी क्या पत्थर भी बात किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो यस, इन सम सिचुएशंस. एक और वाकया है, वाकया नहीं है, एक और हदीस हमें मिलती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हक के साथ हजरे अस्वद को बोसा देगा, कयामत के दिन हजरे अस्वद उसके ईमान की गवाही देगा. इसको रिपीट करती हूँ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हक के साथ हजरे अस्वद को बोसा देगा, तो कयामत के दिन हजरे अस्वद उसके ईमान की गवाही देगा. सुभान अल्लाह. क्या है ये हजरे अस्वद, पता है आपको? तो पत्थर जो हम चूमते हैं,
कहाँ पे है ये पत्थर? काबे में। काबे में, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी इमेज जिन लोगों ने नहीं देखा है अगर, तो आई विल पुट इट। एक मिनट। हाँ, देखिए काबे के